Students, if in case if you all don't know where exactly the last lecture had terminated in that case, then one can go ahead with whatever the person is comfortable will go ahead with that. If you all don't monitor, if you all don't know what exactly is happening into the lectures, then it's useless sitting into the lectures. That's why I'm putting in on the recordings. I started recording now. I'm speaking to you all very clearly about it. Let your parents also hear it in the recording lectures. Make them to hear these things very clearly that your kids are irresponsible. They don't know what exactly is happening into the lectures also. But I'm asking you after the last 4 minutes, I'm asking you 4 to 5 minutes, what exactly has been done? None of them is replying. What exactly it means? That means you're at least bothered. You have been forced to enter into the lectures. There is not a hard and fast rule. No need to come into the lectures. You can walk out right now also. Unnecessary sitting in the lectures. Why you're creating burdens for yourself and for your parents? Go to sleep. Waste of light, waste of network, waste of everything. Occupying place. People at home must be wanting to have some sleep also. You are trying to disturb them by coming into the lectures. And creating a scenario at home that you are the only one who is doing studies. Nobody else is doing studies in the entire world. You all are the only one who are doing studies. Getting up at 7:25 and sitting for 7:30 lectures. This much you are irresponsible that you don't know what exactly is happening inside the classroom. How much has been done? What has been going on? Kitna kiya hai? Kitna karwana baki hai? Check out the other students who are in class 12th. They are monitoring each and everything because they want to score. They are in science and they want to score. They're not sitting idle. Friends, don't just push yourself into the lectures. Don't just push yourself into the lectures. If you're coming into the lectures, you're not doing any favor unto me. Is that clear? Not even unto IITian hubs. Not even unto your parents. You can walk out right now also. But somewhere or other, you should understand what are you coming into the lectures. You all don't know what exactly the head and tail, how much has been done, what is to be done, how much to be worked on to, how much is left. Things which are of not of your interest, to hell with it, isn't it? Of course, these studies are of not of your interest. That's why you're trying to take it very lightly. The things are which are of your interest, you'll try to enter more into it. Use your brains into these. This will help you out. The studies will help you out to score better percentage. Still in a relaxed mode. When you know that your examinations, everything will be on time. The pandemic graph is going exponentially down. ट्वेंटी 1 का सीईटी का अभी भी भरोसा नहीं आ रहा है 21 सीईटी स्टूडेंट्स अभी भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट इज हेवाई they're not thinking at all and you all are still depending on to the CET part of it when you know that 21 का अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है not even sincerely doing your NEET, not even sincerely doing your JEE mains, not even sincerely doing your HSC board, not even sincerely doing your Maharashtra CET also. Nothing has been sincerely done at all. Just coming, sit into the lectures, since it's a compulsion, maybe paid fees, that's why I have to sit into the lectures and then walk out. So the parents should sit beside you right now and to listen to me also, that is what exactly is happening with your studies.
Students, you all are fooling around with your studies. Take it from me. You're fooling around with your own studies. You all are responsible for not getting good marks by yourself itself only. From our side, we are trying our best to see to it that something best happens for you or something better happens for you. But no, you all don't want in that particular manner. The next concept after Wheatstone meter bridge students is a potentiometer students. Okay, in the Wheatstone bridge students, I had given you two formulas we considered. The first mathematical relations we considered was your E1 by E2 was equal to L1 by L2. Your formula was based on the Wheatstone network. The second formula was sum and difference method E1 plus E2 upon E1 minus E2, and that is equal to L1 by L2. Using component and dividendo, I got E1 by E2, which is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2. These were the two mathematical relations that we got it earlier in that case. Now we go for the concept of potentiometer students. Now, what exactly a potentiometer wire we consider is? A potentiometer wire, simply we can take it as actually a wire which is a uniform cross-sectional wire, cross-sectional area wire, okay, which is a conducting wire we consider. Its length can vary between 2 meter, you can consider to 14 meter. And उसका लेंथ 2 मीटर से 40 मीटर के बीच में हो सकता है, and it's a uniform cross sectional wire we consider, conducting wire we consider. Now, the purpose of using potentiometer students is इसलिए हम potentiometer use करते हैं. So what are its application? Potentiometer हम लोग use कर सकते हैं because it's a highly sensitive device we consider, and it can measure students. It can measure small potential difference. That means I can get potential difference millivolt also, or I can get in terms of microvolt also. Very small potential difference, I can measure it. So potentiometer wire is a device which can be used to measure very small potential difference accurately. ये इसका मेन कंसेप्ट है, यानी छोटा सा छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा तो ये मेजर कर सकेगा. दूसरी बात यहाँ पे अगर if I consider can be used to measure electromotive force, yes, it can be used to measure EMF also. It measures EMF of an electric cell. It measures EMF of an electric cell students. So it measures small potential difference accurately. It measures EMF of a cell also students, in that case potentiometer. Measures EMF of a cell also, and it measures small potential difference in millivolt and microvolt accurately in that case. It measures EMF of an electric cell also students we consider. At the same time, it is used to measure internal resistance also. Measures internal resistance of cell. Students, I just want to ask you one thing. Is the audio and video fine with all of you all? Yes, sir. Thanks for replying. Hitansh. Jason Thomas is now replying. पहले क्या हुआ था reply करने के लिए? Unnecessary. Students, see one thing. It is not good that someone should start with something of that sort. First you trigger in that case and then you put forward. Studies को समझना है students. Try to understand. These students try to understand the investment of the parents' hard-earned money. The way they are investing behind you students. पढ़ाई के मामले में दूसरी चीजों में उनको वर्थ वापस you have to give it back in returns.
Understand this much also, what exactly you're doing with your life. Sir, I was not there initially 10 minutes in the lecture. नितांश, लेकिन मैं करो क्या, अभी तू नहीं है तो बाकी सारे स्टूडेंट्स एकदम चुप। वैसे तो नेटिव पर बहुत आंसर देती थी, चिराग also used to, but no, hardly there is a response of, maybe if I consider, hardly 3 or 4 students in this particular class. The strength is how much right now? It's 22. I'm the 23rd person. Whereas the strength of the entire batch may be around 35-40. Still, there are people who are dozing off. बारिश हो रही है, network नहीं है, सो गए. It's like that going on. So at least whoever are present, at least that should be mentally fit, mentally present in that case. Now they're entering inside Dhara, Dhotriya, and Shwet and all these things. जैसे IIT हब नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का नाम है धर्मशाला, ऐसा फील हो रहा है. मेरी मर्जी, मैं चाहे जब भी आऊँ तभी मुझे लेने की जरूरत है. It's all there. And the issue क्या, फिर रीजन क्या, everybody is giving a reason, network issue. सारे नेटवर्क इशू. मुझे तो सिंपली आई फील लाइक दैट कि अगर तुम लोग लेट आते हो तो तुरंत अविनाश सर साथ में होना चाहिए. एक दूसरे कॉल पे अविनाश सर को बोल दो कि ये बंदा लेट है, अभी कभी फोन करो उसके पेरेंट्स को. डैड को डायरेक्टली फोन लगाओ, अगर सोते होगे तो उठाओ उनको और पूछो उनको करके, क्या नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे, आपका बच्चा लेट एंट्री आ रहा है अंदर. इंस्टेंटली देयर शुड बी अ कॉल गोइंग राइट नाउ itself only. When parents name comes into it, mom and dad का नाम आया था, especially dad का नाम, then everybody starts working properly. Why? Okay, students, तो हम लोगों ने ये पार्ट किया होता, अभी हम पोटेंशियोमीटर ऊपर के जा रहे हैं. That's what I asked you. Audio and video is fine, so that things are correct. Potentiometer हम करते क्या है, इसलिए to measure very small potential difference, we can measure terminal voltage. Okay, it can be millivolt, microvolt में भी accurately measure कर सकते हैं. Measures EMF of the cell also. It can also be used to measure internal resistance cell. ये भी मैंने बता दिया. टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है, एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है. स्टूडेंट्स, ये सब कुछ पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ मैं. Now when you move further from here onwards, students, what is an advantage of potentiometer over voltmeter? तुम बोलोगे सर हम पोटेंशियोमीटर पढ़े ही क्यों, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो, एक नया वर्ड हमारे दिमाग में डाल रहे हो. जब तक अब तक हम लोगों ने 9वीं 10वीं में, थोड़ा बहुत 11वीं में सुना होगा या देखा होगा, हमने हमने दूसरा डिवाइस हम लोग ने पढ़ा हुआ था, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर ऑल्सो मेजर्स व्हाट, वोल्ट मीटर मेजर्स potential difference across 2 points of an electric circuit. बस, यानी ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 points ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. बस उतना ही मेजर कर सकता है स्टूडेंट्स. हाँ, वो बात है कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर हमें हमें वोल्ट्स में दे सकता है, या मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में दे सकता है. लेकिन ये जो वोल्ट मीटर स्टूडेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर ईएमएफ. अगर मैं ईएमएफ मेजर करना चाहूँ इससे, तो इट कैन मेजर. अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना चाहूँ तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस. वोल्ट मीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स. तभी जाके हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत होती है. तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर हैज एन एडवांटेज ओवर वोल्ट मीटर, ये ध्यान में रखना. Potentiometer has an advantage over voltmeter because it has these things, and very important, potentiometer can give you more accuracy in that case. हमारे डे टू डे लाइफ में हमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए, हम ईएमएफ वगैरह मेजर नहीं करते. ईएमएफ मेजर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर ही यूज करेंगे. दूसरी बात, वोल्टमीटर को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वो पोर्टेबल है. इट्स पोर्टेबल, वी कंसीडर. पोर्टेबल का मतलब छोटा सा डिवाइस है, एक छोटा सा ट्रेपीजियम जैसा होता है, तुम दोबारा पॉकेट के अंदर भी डाल सकते हो, यहाँ से वहां तुम लेके जा भी सकते हो.
लेकिन ये जो डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, इट्स अ ह्यूज डिवाइस, इट्स अ ह्यूज अरेंजमेंट, जहाँ पे 100 to 150 सेंटीमीटर लॉन्ग बोर्ड है। देखो ना लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 2 से 4 मीटर, तो 214 मीटर तो वायर ही है उसमें। 1 मीटर मतलब इंडेक्स फिंगर से लगा के if I keep my nose in this direction, तो उतना लंबा है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर्स, तो सच ए ह्यूज डिवाइस इट इज। तो उसको तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे तुम्हें ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। This is portable, this is not portable we consider, but this can be used to measure EMF, internal system, but that's why potentiometer we consider is preferable as voltmeter we consider. लेकिन हम डे टू डे लाइफ में वोल्टमीटर यूज करते हैं to find out your potential difference across the electric circuit. Now let us understand how exactly a potentiometer ka principle is. Why all these people come so late? Every time I have to make them enter. Man, why do they come in late? मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे 7:30 का टाइम देना चाहिए और मुझे 7:45 8 o'clock को शुरू करना चाहिए लेक्चर्स, है ना। 7:30 का टाइम देके हमें भी 7:45 8 बजे 8:15 बजे I should do like that. I'm speaking about myself. I'm not speaking about anybody else. I'm speaking about my lectures. और बोल दो रीजन, मेरा भी नेटवर्क इशू है। You will be the same students who will try to do speak it out. It is always happening like that. Lectures are at 7:45, 8 o'clock lectures. You'll be the same people who are coming late. These people also will enter in that boat, sailing in the boat. तुम करो तो जायज, मैं करूँ तो ना जायज. This is how it is. Okay, students. Now please pay attention. Now when I speak about potentiometer, we are trying to go for the principle. Students, ये बहुत ही important concept है. इसके problems भी सारे tricky होते हैं. जिसको जिसको समझ में आया पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट, वो क्लिक हो जाता है, उसको सारे प्रॉब्लम्स भी सही लगे। जिसको पहला प्रॉब्लम गलत मिला, सारे प्रॉब्लम्स गलत ही आए। So please understand very properly in that case for the concept of potentiometer. Let us go for the principle of potentiometer. The principle of potentiometer is what? That is, it says that the potential difference between any 2 points. Friends, the potential difference V between any 2 points, along the length of the conductor, along the length of the conductor. I repeat, potential difference between any 2 points along the length of the conductor is directly proportional to the distance between same 2 points. That's what the principle is. I repeat, answers to my students, potential difference between any 2 points along the length of the conductor is directly proportional to the distance between the same 2 points. यानी अगर मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V लिया, ओके, और उस 2 पॉइंट्स के बीच में लेंथ इज L, तो potential difference is directly proportional to L. And this ratio V by L remains constant. ये जो V by L है उसको मैं नाम दूंगा potential gradient. Potential gradient, which all the times remains constant. हम ये प्रूफ करेंगे, ये पार्ट हम लोग प्रूफ करेंगे by going for a simple explanation with the help of a diagram.
Now let us understand the circuit diagram of it first. पोटेंशियोमीटर वायर के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 मीटर वायर ले लिया. तो आई कैन शो इट इन दिस मैनर. ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये तुम्हारा पॉइंट बी है. सोचो कि 2 मीटर लॉन्ग वायर मैंने लिया हुआ. एग्रीड. और इसी वायर के साथ मैं I've tried to connect it, students, a source of electricity, that is a cell I'm taking it, a key I'm taking it. Okay. And I'm connected to the negative potential source. Positive, negative, E, K, students. अब ध्यान से सुनना. E क्या है? EMF of the cell. EMF of cell है. AB क्या है? Length AB, okay, which is equal to length of potentiometer wire. ये जो लेंथ है वो क्या है? लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. अविनाश सर है कि नहीं, चले गए? I wanted to speak to him. अविनाश सर आप हो? यस सर. सर जी, ये स्टूडेंट्स अपने ही फुर्सत से आते हैं. come to their comforts. ओके, लेट आते हैं ना. मैं उनके लिए 4 मिनट भी रुकता हूँ पहले, 4-5 मिनट, लेकिन फिर भी नहीं, अपने फुर्सत से 20-20 आधा घंटे के बाद में आते हैं. और ऊपर से उनको पूछो भी करके कि क्या है बताओ करके, कहा हम लोग लास्ट टाइम, तो किसी का रिप्लाई नहीं. ओके. और लेट आना, अरे बाबू भी यार शक्ति आना है. यानी ये अपने फुर्सत से ही आते रहते हैं. एक दफे आता फिर मैं एक पेपर के ऊपर नोट डाउन करता हूँ नाम, ऐसे 2-3 लेक्चर्स में ऑब्जर्व एक करूंगा. 15 मिनट का क्राइटेरिया होती है सर, उसके बाद मत लीजिए. 15 मिनट्स मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मैं भी लेट हो सकता हूँ सर. मैं भी लेट हो सकता हूँ. 15 मिनट का बफर में सबको देता हूँ करके, लेकिन उसके बाद आधा घंटे के बाद 8:60 हो गई है. अभी भी कितने सारे स्टूडेंट्स 8 बजे के टाइम पे भी आए. स्टूडेंट्स आर अप्रूव. मैं ऐसा करता हूँ कि 15 मिनट के बाद में जो भी नेक्स्ट टाइम से लेट आता रहेगा, जो भी उनका इशू होगा, आप बात करिए उनसे कि चलो अगर इशू है तो बाद उनका नाम लिख में, और पहले क्या मैं 2-3 लेक्चर के बाद में मैं नाम लिख के मैं आपको मैं फोन करके बता दूंगा भाई ये स्टूडेंट्स है, इनका ये कॉमन है एजेंडा, क्योंकि हमेशा ये लेट आते रहते हैं. ठीक है सर, ठीक हाँ, है. मैं 3-4 मतलब लेक्चर नाम के दे बाद दीजिए. में आपको मैं इन्फॉर्म करूँ. 3-4 लेक्चर के बाद में आपको इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपसे बात करी, सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं मुझे, आपको भी सुन रहे हैं. ओके, लेकिन आफ्टर 3-4 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स आई ट्राई टू थ्रो अक्रॉस. ओके. ओके सर. ओके. Okay. Students, now we'll go for the principle we consider. Now, students, this is your potentiometer wire AB, students. The length of the wire is AB, students. EMF E है. ये तुम्हारा K है. L length of the wire is length AE, students. That's the length of the potentiometer wire, students. We consider. Agreed. Now I want to find out potential difference. Now suppose students, answer students. Suppose if I take any 2 points, अगर मैं ये point लेता हूँ और ये point लेता हूँ, students. Agreed. And if in case if I don't insert the key, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, यानी अगर ओपन सर्किट रखूंगा, ओपन सर्किट रखता हूं, यानी देयर इज नो करंट ड्रॉन टू द सेल. लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पे इफ आई हैपन टू मेजर, आई गेटिंग इट, voltage across these 2 points. Agreed. And then if I insert the key, what exactly it measures? You will say it will measure the potential difference between AB. And students, potential difference between AB is simply called as the EMF. Potential difference across AB, students, is simply called electromotive force of the cell, students. So when you speak about a voltmeter connecting across, we can find out the potential difference we consider. यानी ध्यान से सुना students, अगर EMF of the cell E है, तो corresponding length में क्या ले रहा हूँ? AB ले रहा हूँ. लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यही जो वोल्ट मीटर है, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, यही जो वोल्ट मीटर है और ये जो वायर है,
अभी ग्रेजुअली स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ग्रेजुअली स्टूडेंट्स में ये वायर को ये पॉइंट पे रख रहा हूँ, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, फिर वो वायर को स्लाइड करके यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर वो वायर को और स्लाइड करके यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर वो वायर को और स्लाइड करके यहाँ पे रख रहा हूँ। यानी व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, मैं क्या करना चाहता हूँ? तो बोलेगा सर आप मेजर करना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और यहाँ पे अपने ले लिया, तो लेट मी टेक दिस एज P1, इसको मैं लेता हूँ P2, इसको मैं लेता हूँ P3, इसको मैं लेता हूँ P4, यानी अक्रॉस दिस स्मॉल लेंथ, अक्रॉस दिस स्मॉल लेंथ, अक्रॉस दिस स्मॉल लेंथ स्टूडेंट्स। तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस across AP1 and the corresponding length will be length AP1। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये जो एंड है वो स्लाइडिंग जॉकी इसको बोलते हैं, I'm putting the word जॉकी। तो स्लाइडिंग जॉकी को मैं P1 से P2 की तरफ लेता हूँ, तो अगर मैं P1 to P2 की तरफ लेता हूँ तो ये पार्ट तो होगा नहीं अभी मेरा, तो मेरा पॉइंट P2 आ गया। So now if in case if I happen to consider this, Prerna, you wanted to say something? If I try to push this particular sliding jockey backward, absolutely, Himanshu. Okay. So what exactly this will be? Potential difference across AP2 and the corresponding length क्या होगा? Length will be AP2. लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखो, अगर मैं सपोज इनका रेशियो निकालू, हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका रेशियो निकालू E/L, या मैं रेशियो निकालू VAP1 बाय लेंथ AP1 या VAP2 upon length AP2, what is the ratio of all of them? Ratio of all of them will remain constant. All the time will get the ratio to remain constant in that case. यानी जैसे जैसे तुम्हारा लेंथ, ध्यान से सुना, जैसे जैसे तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा, तुम्हारा potential difference across the points also will change accordingly to keep the ratio all the time remains constant, and this ratio is called potential gradient, which remains constant, and this becomes the principle of potentiometer. Now read the principle of potentiometer. Potential difference between any 2 points, it can be AP1, it can be AP2, it can be AP3, along the length of the conductor, is directly proportional to the distance between the same 2 point students. अभी मैं ये रेशियो कैसे कांस्टेंट ले सकता हूँ? तुम बोलोगे सर करंट तो सेम होगा। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से की को इंसर्ट करूँ, करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, की को मेरे को क्लोज करना था, तभी जाके वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से सुनना, अगर स्टूडेंट्स मैं बोलूं मुझे एपी के हिसाब से चाहिए, तो जो करंट एपी में जाएगा वही करंट AP2 में जाएगा। करंट विल ट्रैवल इन द सेम पाथ, सारे में करंट विल रिमेन द सेम, तो आई सेम है, तो यहाँ पे क्या है सर, आई इज कांस्टेंट थ्रू आउट। दूसरी बात, अगर मैं देखो इज द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अरे हाँ सर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यानी एरिया भी कांस्टेंट इन दैट केस। What about the resistivity of the wire? So resistivity of the wire also depends on the material and temperature. So sir, material will constant, the rho is also constant. So one can say that E is proportional to simply L we consider, and the ratio of it all the time remains constant, and that is called as a potential gradient remaining constant. And this becomes your principle of your potentiometer wire. So the principle of a potentiometer wire simply says that the potential difference between any 2 points along the length of the conductor is directly proportional to the distance between the same 2 points. So V is proportional to L's, or V/L is equal to constant, or E upon capital L remains constant. What does E always stands for? Electromotive force of the device of the potentiometer. What is capital L अगर मैंने ले लिया और मैं हमेशा AB use करूंगा students? Potentiometer wire का length I am using it as AB. That becomes the length of the potentiometer wire. Is this clear to all of you? Can I erase it?
करण जी, ये समझ में आया? करण जैन, what is I? What is I? What is the electric current? वो तो करंट पता है, लेकिन what is I? अरे अनम्यूट करो, ये सब टेक्स्ट कर दो. आई हैव टू वॉच इट ऑल द टाइम. ट्राई टू अनम्यूट एंड स्पीक इट आउट. करंट क्या कांस्टेंट है कि नहीं है थ्रू आउट? हाँ, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, या अगर मैं पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ इसमें लूंगा तो इसमें करंट अगर टू ये है और मैं लेंथ अगर बढ़ा दूं तो करंट क्या बढ़ेगा? हाँ, करंट कांस्टेंट है कि नहीं? आर का मतलब क्या है? व्हाट इज कैपिटल स्टैंड्स फॉर करंट? आर का मतलब क्या है? करंट जैन, व्हाट इज आर स्टैंड्स फॉर? डजंट मैटर. लेकिन अभी चलो, अभी सारा का यही इशू है. जिसको बोलना नहीं है, जिसको लेट आना है, सबका नेटवर्क इशू ही है. I getting it? सबका नेटवर्क इशू है. I getting it? And one can't say regarding that. I have nothing to say about that. But now you answer for this. Capital R resistance, क्या वो कांस्टेंट रहेगा? हाँ, तो वो क्या कांस्टेंट रहेगा कि नहीं होगा? करंट स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. अगर सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वो भी कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? आया ना? कैपिटल एल यानी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, क्या वो कांस्टेंट है? एक्सपेरिमेंट में क्या तो वायर का लेंथ चेंज कर रहा है? वायर का लेंथ वही रख रहा है ना? ओके, so now can I say E by L is constant? हाँ, करंट, यही मैंने बोला था. मैंने एंड पे क्या लिखा था? सिंस द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये बताया मैंने. फॉर दैट पर्टिकुलर वायर द रेजिस्टेंस आल्सो रिमेंस कांस्टेंट. ये बताया मैंने. I getting it? The wire is of uniform cross sectional area, the resistance of the wire remains constant, and for that particular length your potential gradient all the time remains constant. And at the end मैंने वही लिखा. मैंने पूछा इरेज करो तो तुमने बोला इरेज करो, तो इरेज कर दिया. वो इरेज कर दिया तो तुरंत you try to put forward by saying these three. By saying these three, how can you prove constant? Okay. I told about resistivity also. The resistivity of the wire is also remaining same. See, students, potentiometer is used to measure very small potential difference also. It can find a potential difference between very two small points or between any 2 points. Far away points also we can consider. And that is why it has an advantage over voltmeter. सिर्फ ये है कि पोटेंशियोमीटर क्या वो पोर्टेबल नहीं है. उसको तुम पॉकेट में ले जाके कर नहीं सकते हो, बड़ा सा डिवाइस है. और दूसरी बात, उसके अंदर सारे सेटिंग्स चाहिए, कैलकुलेशन ज्यादा है वहां पे. यानी उसको अरेंजमेंट सेटिंग्स करना जरूरी है टू गेट द करेक्ट आंसर इन दैट. Okay, now let us go for the formula for potentiometer wire. Just now, which I said it, the same formula I'm trying to put forward. Suppose if I give you the potentiometer wire is AB, okay, the length of the wire is AB, the corresponding resistance of the potentiometer wire is resistance of the wire AB, and that remains constant. We have a source of electricity, we consider E. Let me say that this source of electricity has small intervals and small r. Okay, I have a key. And now I'm going to use a resistance. Let us say that this particular is a known resistance. I'm putting an arrowhead and crossing it. तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा resistance box है. यानी ये तुम्हारा known resistance. Known resistance in series, or I can call it resistance external. ये तुम्हारा setup मैंने दिया है. Now when I insert the key, what happens? The current starts flowing. Okay, the circuit is completed.
अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB लेंथ AB ले लिया तो इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB विल बी सिंपली EMF E। अगर मैं कोई पॉइंट P लेता हूं स्टूडेंट्स तो उसके अक्रॉस द वोल्ट मीटर होगा, उसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो वो क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB स्मॉल b, करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या होगा, लेंथ AB होगा। एग्रीड। अगर मैंने पॉइंट P ले लिया, नाउ इफ आई से पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना, potential difference upon length of the wire. This is called as potential gradient. All the time remains constant. So can I say V by L also can be considered to be equal to constant? So V by L क्या है? So this is potential gradient. V by L इसका unit क्या होगा? What is the unit of this? It's volt meter inverse. And this ratio all the time remains constant. Potential gradient is V by L. Now suppose अगर इसी का मुझे mathematical formula चाहिए तो कैसे लिखूंगा? What is the mathematical formula I can consider in this case? ये है तुम्हारा length of this potentiometer wire. Agreed? Now suppose if I happen to go for the entire wire we consider, the potential gradient can be written as what? I can write it in terms of current also I can consider. So means I can write it as I into R. And if I happen to consider, see, ये जो potential gradient क्या है वो V by L. So इस डांस से ना पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं ना V by L यानी I into R by L। ये R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर AB। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑल द टाइम रिमेंस कांस्टेंट। व्हाट्स द फार्मूला फॉर I? I is equal to E upon capital R plus small r। तो क्या ये फार्मूला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द लेंथ। V को मैंने क्या डाल दिया, I into R डाल दिया। लेंथ ऑफ वायर इज AB। फिर I को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? This is the current for the complete circuit which I told you earlier. I is equal to E upon capital R plus small r. Is this clear to everyone? Agreed. So now can I say instead of I can I put E upon resistance of wire AB plus internal resistance, बाहर क्या है, resistance of wire AB upon length of AB. So now can I say my formula for potential gradient can be written in this manner? Yes. अगर सपोज मैंने और एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, सपोज अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इज दिस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू पोटेंशियोमीटर वायर? यस, मेरा पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस ए भी है, लेकिन इसको मैंने सीरीज में ले लिया है। तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा वो कहां पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, क्योंकि वो सीरीज किसके साथ में, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में भी है और एबी के साथ में भी है। तो नाउ माय फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एब्सोल्युटली करेक्ट चिराग, इसके मेरा फॉर्मूला E upon resistance of wire AB plus internal resistance। अगर मैं कोई external resistance कनेक्ट करता हूं तो वो external resistance EXT लिखता हूं, लेकिन वो सीरीज में है। ब्रैकेट क्लोज into resistance of wire AB upon length of wire AB, and this answer is in volt-meter inverse. Hope this part of the formula is clear to everybody. और ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा यूज होने वाला है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर दे आस्क यू व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए the potential difference between any two points is directly proportional to the distance between the same two points, so the ratio remains constant. Can I go for the complete length of the wire? Yes, I can go for the complete length of the wire. The potential gradient will be equal to what, the potential difference across these 2 points, that is I into R upon the length of the wire, that is AB. Can I substitute I as my general form of Ohm's law? Yes, I को मैंने substitute क्या किया, I is equal to E upon capital R plus small r। तो E upon capital R plus small r, capital R क्या है, resistance of wire AB, R क्या है, वायर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है साथ में और वो भी मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स दिया,
ये नोन रेजिस्टेंस है, सीरीज में और एक्सटर्नल भी है, तो वो कहाँ पे ऐड करोगे, इसके साथ में ऐड करोगे, एंड दिस एंटायर फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट व्हिच इज इन वोल्ट मीटर इन वोल्ट्स. Is this clear to all of you? Karan, is it clear to you now, Karan? I have no problem, students. You can ask. See one thing, students. those students समझते हैं ना, वो doubts पूछते हैं. See, दो according to me, दो students doubts पूछते हैं, मालूम है? दो students doubts पूछते हैं. जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, head and tail, उनके लिए पूरा chapter doubt हो जाता है. They don't know anything. They don't know the head and tail of the chapter. उनके लिए पूरा chapter वो doubt में डाल देते हैं. This is my doubt, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है. दूसरा जो स्टूडेंट समझता है तो उसके अंदर क्वेश्चंस रेज होते हैं, एंड देन दैट पर्सन पुट अक्रॉस. So if you understand, you will certainly ask, and if you ask, of course, I'll tell you the answer accordingly. But at the same time, try to understand what exactly I'm trying to put forward. और जब भी मैं बताता हूँ, फिर वहां पे मैं पॉज कर दूं, उसी टाइम पे उसको क्लियर करो. And when you're posting it, when you're posting it, there are other students who are posting. तो शायद तुम्हारा पोस्ट ऊपर चला जाएगा. All the time when I'm focusing, तो अगर तुम्हारा अनम्यूट का ऑप्शन है तो अनम्यूट करके रुकाओ ना. तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल है. टीचर को यू टर्न मरवाना, टीचर को बोर्ड पे लेके जाना तुम्हारे हाथ में है, जो क्लासरूम में नहीं होता था. हेलो, क्लासरूम में नहीं होता था. क्लासरूम में तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे है, लेकिन तुम उसका यूज ही नहीं कर रहे हो. अनम्यूट करो, सर ये मेरा डाउट है, क्लियर बताओ करके. दिस इज हाउ इट इज. ऑनलाइन स्टडीज को बेनिफिट करना या उसको बून बनाना वो तुम्हारे हाथ में. ऑनलाइन को शील्ड बना के पढ़ाई नहीं हो रही है, वो भी तुम्हारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है. So not all the time you can consider. So you have a biggest remote control into your hand. If you're not using that properly, my dear students, so it's going to be in mess. और तुम पोस्ट कर रहे हो, now the other students have started posting it, सारे का आ रहा है. तुम्हारा कोई genuine होगा वो ऊपर चला जाता है स्क्रीन के ऊपर. So for me to again recollect, because I'm in that explanation part of it, मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ. By times कुछ टेक्स्ट आ जाता है, तुम्हारा ऊपर चला गया, वापस उसको नीचे करके स्क्रॉल करके, that is what it is. So it's better ना, unmute yourself. अगर है ऑप्शन तो अनम्यूट करो, पूछ लो क्या फायदा. अच्छी तरह से तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है. स्टूडेंट्स, बी सेल्फिश. पढ़ाई के मामले में हमेशा सेल्फिश रहने की जरूरत है. नहीं रहोगे तो पछताओगे, बस दैट्स द ओनली थिंग. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला? So now whenever I ask you students potential gradient, हमेशा स्टूडेंट्स सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हें ये ध्यान में रखना है. ये छोटा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. यानी ये लेंथ बहुत छोटा भी हो सकता है. शायद मैं इसका यूनिट क्या दूं मालूम है, माइक्रो वोल्ट पर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मिलीमीटर में भी दे सकता हूँ मैं. इतना छोटा डिस्टेंस भी दे सकता हूँ. तो तुम्हारा है. दूसरा तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला अगर किसने पूछा तो सीधा बोल देने का, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस if any external resistance connected in series. ये पूरा ब्रैकेट में ही आएगा स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना. into resistance of potentiometer wire upon capital L, length of the potentiometer. ये ध्यान में रखना, ये टोटल लेंथ है, स्मॉल एल नहीं है. So that is how we consider that the ratio remains constant in that case. Now we have the applications. Applications in case of potentiometer wire is first of all to measure what? We consider is to measure the EMF of the cell we consider. Agreed? So how do you find out the EMF of the cell we consider for potentiometer wire? तो हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सिंपली इसी का रिलेशन हम लेते हैं, और जो मैंने फॉर्मूला इसके पहले दिया था E1 by E2 is equal to L1 by L2, I can simply use that. यानी अभी हम डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखा था ना, E1 by E2
will be equal to L1 by L2. किसी एक EMF को हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा EMF दिया होगा. L1 and L2 are the corresponding balancing length, students. हितांश ये क्या टाइप किया है? I can't make it out. क्या टाइप किया तूने? Sir, E1 by E2 is equals to L1 plus L2 upon L1 minus L2. हाँ बराबर है. फाइन फाइन फाइन. और दूसरा फॉर्मूला तुमने जो बताया वो वाला एब्सोल्युटली करेक्ट. E1 by E2 is equal to L1 plus L2 upon L1. अगर स्टूडेंट्स कभी टाइम मिले ना, स्टूडेंट्स कभी टाइम मिले ना, तो डाउनलोड करना HSC प्रैक्टिकल्स, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड प्रैक्टिकल डाउनलोड को पोटेंशियोमीटर के डाउनलोड करना और एक दफे वीडियो उसका देखना. आई गेटिंग इट कि हाउ एग्जैक्टली पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टू मेजर द EMF. इसको मेजर करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली द पोटेंशियोमीटर वायर, स्टूडेंट्स, इज एक्चुअली व्हाट, यू नो, इट्स अ लॉन्ग वायर, स्टूडेंट्स. Okay, we consider it's a long wire, we consider, and it's a 4 meter long wire, we consider. You can go for 2 meters to 14 meters. We can go for 4 meter long wires. And अगर मेरे डायग्राम में बताऊं तो ऐसा होगा ना, तो सुनिए. The diagram speaks about positive, negative. This is EMF of the source. This is point A. यहाँ पे तुम्हारा T आएगा. ये तुम्हारा यहाँ पे rheostat है. Okay, now listen carefully. यहाँ से तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर यूज हो रहा है. So now I'll go for potentiometer wire. Please pay attention. This is 1 meter. This is 2 meter. This is 3 meter. This is 4 meter. 4 मीटर लंबा वायर है, स्टूडेंट्स. मैंने क्या किया है, ये पॉइंट को पॉइंट ए दे दिया है और ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, यानी ये ए बी क्या हो गया, ये पार्ट हो गया. बी से जो वायर होगा वो इसको कनेक्ट हो रहा है, रियोस्टेट. यानी ये क्या है, वेरिएबल अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता. ये क्या करता है, ये रियोस्टेट क्या करता है, इट अलाउज अ कंट्रोल्ड करंट टू फ्लो थ्रू इट. करंट को कंट्रोल करने के लिए हम ये रियोस्टेट यूज करते हैं. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ यूजिंग दिस रियोस्टेट. क्या बात है, किशन विश्वकर्मा अभी आ रहे हैं. वेरी गुड, किशन विश्वकर्मा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर 4 वायर्स वी कंसीडर. देखो ये चारों वायर्स को मैंने क्या किया, जहाँ पे एंड पॉइंट्स है वहां पे मैंने कॉपर प्लेट बिठा दिया. इधर एक कॉपर प्लेट है, यहाँ पे भी कॉपर प्लेट है, यहाँ पे भी कॉपर प्लेट है. ये कॉपर प्लेट क्यों बिठाया है स्टूडेंट्स, व्हाई इज दैट, क्योंकि ये कांटेक्ट हो जाएगा. ये कांटेक्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे कांटेक्ट है तुम्हारा. यानी देखो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर वायर, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है, ब्लू इंच. नाउ आई वांट टू मेजर व्हाट, हम पहला ये वाला कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाला हम ये डिराइव कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्मूला. आई वांट टू फाइंड आउट EMF. ये सोचो कि हमें EMF फाइंड आउट करना है, तो मैं 2 दफे ये एक्सपेरिमेंट करूंगा बाय टेकिंग 2 डिफरेंट सेल्स, जिसमें एक का EMF मुझे नहीं पता है, दूसरे का मुझे पता है. हम वो यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे. यानी स्टूडेंट ध्यान से सुनना, in order to find out EMF of a given cell, I should go for an EMF of a known cell also in this potentiometer concept. This is what a circuit diagram of a potentiometer wire. Now where should I connect this EMF? So what I'll do, I'll try to connect one EMF. We consider ये EMF मैंने यहाँ पे ले लिया. Let me take this E1. Internal resistance में negligible लेता हूँ उसका, तो चूंकि internal resistance negligible है, यहाँ पे मैंने इसका की ले लिया, ये K1 है. दूसरा EMF मैंने इसी के अक्रॉस मैंने डाल दिया, ये की K2 है. एग्रीड. और यहां से मैंने एक वायर दिया है जो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रहा है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर एक जॉकी बिठा के रखा है. क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यानी माय पोटेंशियोमीटर सर्किट ये है, ये एक दूसरा सर्किट मैंने लिया है. क्यों लिया है? to find out E1 if E2 is given to you, or to find out E2 when E1 is given to you. लेकिन 2 सेल में से किसी एक का EMF देना जरूरी है. पोटेंशियोमीटर वायर का यूज क्या है? to find out the EMF. Is circuit diagram clear first to all of you all?
all the students who are into the group, 30 students. Yes, Vishwakarma, are you there, Vishwakarma? Vishwakarma, are you there? हाँ किशन, समझ में आ Yes रहा है? sir. समझ में आ रहा है? Yes हाँ? sir. Very good. देखा students, such an intelligent boy, किशन विश्वकर्मा yes sir बोला. 7:30 के लेक्चर्स को 8:36 को आता है और वो भी पूरा कंसेप्ट समझ जाता है. मैं पहले से ना आई डू अंडरस्टैंड माय डियर, लेकिन बीच बीच में नेटवर्क का इशू है ना. नहीं सर. अरे अब भी नेटवर्क लीव का हुआ इशू तो है. पूछ लो, बाकी लोग हैं, मेरा नाम कोई तो देखा ही होगा. मैं था 7:30 से हूँ. नेटवर्क का इशू 34 पे आपने लेक्चर चालू किया. अच्छा, नेटवर्क का इशू है तुम्हारा. हाँ जस्ट लॉग आउट हुआ, फिर मैंने तुरंत वापस लॉग इन किया. ओके हाँ, बिल्डिंग समझ में आ रहा है किशन? हाँ सर. प्लीज अगर होगा तो कुछ बोल दे. तो कैसे अनम्यूट करके बिंदास बोला यू शुड अनम्यूट एंड आंसर. और नहीं समझ में आता तो फिर रुकाने का किशन मुझे नहीं समझ में आ रहा है. और मुझे लगा कि तो है ही नहीं लेक्चर में, तो अभी आया है लेक्चर में, क्योंकि योर सरनेम आई एम रियली हैप्पी, आई लाइक दैट पर्टिकुलर नेम. तो ये तुरंत मेरे दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं वो स्टूडेंट है कि नहीं है. लेकिन तू बोल रहा है तो आई हैव टू बिलीव यू इन दैट केस कि नहीं तू होगा करके, जेन्युइनली तो होगा. अरे सर कोई तो देखा ही होगा. मेरा दोस्त भी है हिमांशु पांडे, वो उसको पूछो. क्वेश्चन अभी मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर मैं कोई प्रॉब्लम डालूंगा, ये फॉर्मूला मैंने दिया है और तू अगर ये फॉर्मूला बोल देगा तो सही है करके कि चलो यू आर प्रेजेंट इन दैट केस, है ना. इट्स नथिंग रॉन्ग इनटू इट. बट मुझे अभी लगा कि तो अभी आया करके, दैट इज व्हाट एंड आई गेट कि क्या हो क्या रहा है करके, इतना लेट क्यों आया. आई फील इट बिकॉज यू आर रियली गुड. तो हमेशा आता है पहले, तो हमेशा एंट्री पहले ले लेता है. अभी सर्किट डायग्राम क्लियर है? हाँ किशन, किशन इज द सर्किट डायग्राम क्लियर? अरे किशन, आर यू देयर और नॉट? चिंक अगेन इसका नेटवर्क इशू हो गया. You can't speak. Okay, it seems that he is there, but I don't know. Maybe network issue वापस आया इसका. बारिश भी बहुत हो रही है. Okay, students, listen carefully. ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, मैंने जॉकी ले लिया तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. Now let us go for your concept related with the answers. Now when I speak about with respect to your EMF, students, this is E1 and this is E2. What I'll do is, students, in the first case में क्या करूँगा, मैं E1 को क्लोज करता हूँ, E2 को ओपन रखता हूँ. Am I getting it? I close E1 and this is my E is closed already. यानी स्टूडेंट्स ये अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये मेरा ड्राइविंग सोर्स हो जाएगा. ये ई मेरा ड्राइविंग सोर्स है स्टूडेंट्स. करंट ये भेज रहा है. जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो यहाँ से भी तो करंट होगा, लेकिन ये ओपन है. Now what you do? You try to take the jockey, students, and try to move the jockey all the way from point A towards point B. Students, touch करते रहो. Try to go on touching it. Don't slide. इसको टच करते रहो, टच करते रहो. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तुम आओगे ना स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज अगर तुम इस पॉइंट पे आए चौकी का, ये तुमने यहाँ पे टच कर दिया, और इस पॉइंट पे अगर तुम आए और वहां पे द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी तुम्हारा IG जीरो हो गया. करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो स्टूडेंट्स. करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो. सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A B, तो क्या बोलोगे? Now this galvanometer is showing me null deflection, zero deflection, no current, because the circuit is open to consider. ये तुम्हारा ओपन है तो यहाँ से करंट जाएगा नहीं. तुमने यहाँ पे इंसर्ट किया है स्टूडेंट, तुमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, यहाँ पे इंसर्ट किया, उसका मतलब करंट शुड फ्लो टू दिस पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर. लेकिन एक पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे भी करंट नहीं है अभी. यानी क्या मैं इसको ओपन सर्किट बिलीव कर सकता हूँ? हाँ सर. तो अभी मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AP1 I'll consider as, then you will say the potential difference across AP1 in an open circuit is simply by EMF E1.
is simply my EMF E1 students. उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होगा वो क्या होगा, लेंथ AP1 जिसको मैं लिखूंगा लेंथ L1। क्या ये सबको क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे मैंने थ्रो किया है। I repeat, potential difference students between AP1 is equal to the EMF E1, which is equal to the length AP1, and that I'm taking it equal to length L1. Is this clear? Is this clear to all of you all? Please, all the students, all 28 students inside this particular group. Chirag said it, yes. What about the rest of them? Karan, very good, Karan. Good. मैं सोचा तेरा network issue हो गया. Okay, Karan is also able to. Yes, anybody else? What about anything you need to ask? Kishan, तुम्हें clear हुआ ये? हाँ Kishan? Is it clear? Seems he has a network issue again. Okay, students, now listen here. So the potential difference between AP1 is simply E1, and that is for corresponding L1. What exactly the statement for potentiometer, principle of potentiometer? That is the potential difference between any two points along the length of the conductor is directly proportional to the distance between same two points. So can I say यहाँ पे मेरा E1 is proportional to L1 होगा? Can I say E1 by L1 is equal to a constant? ये मेरा equation number 1 होगा. Agreed? Is this clear? Is this clear to all of you all? E1 is proportional to L1. E1 by L1 is equal to a constant. Now what I'll do, students? अभी मैं क्या करूँगा? मैं अभी दूसरे के लिए आंसर ना. अभी मैं दूसरे सेल के लिए जाऊँगा. अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, स्टूडेंट, इसको क्लोज करता हूँ. तो क्या होगा? वापस तुम जॉकी को ले लो और स्टार्ट मूविंग इट थ्रू आउट. तो तुम्हें यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा स्टूडेंट, लेकिन शायद सपोज अगर ये मैं पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे मैं P2 लिखूंगा, कोई ऐसा मुझे पॉइंट मिलेगा along the length of the potentiometer, यहाँ पे मेरा potential difference will be equal to the current में डाला मीटर is 0. अगर करंट 0 होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? The potential difference between AP2 will be simply my electromotive force E2. उसके लिए corresponding length क्या होगा? AP2 जिसको मैं लिखूंगा length L2. So can I say my E2 upon L2 is also equal to constant. Now from 1 and 2 आ गया तुम्हारा आंसर. ये दोनों केस में potential gradient difference. So can I write down if RHS are equal, LHS is also equal? तो क्या मैं लिख सकता हूँ? E1 by E2 will be equal to what? L1 by L2. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? यहाँ पे ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये किसके लिए पोटेंशियोमीटर, ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए? टू फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ सेल. लेकिन अगर कोई पूछेगा सर ईएमएफ ढूंढना, आपने तो E1 E2 लिखा. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ये दो में से किसी एक ईएमएफ तुम्हें दिया गया होगा, दूसरा तुम्हें फाइंड आउट करना है. सपोज अगर तुम्हें E1 दिया होगा तो तुम्हें E2 पूछा है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंटल पर्पस वैसे ही करना है. अगर ये दिया है L1 मालूम है, L2 मालूम है, you can find out E2. अगर तुम्हें E2 दिया होगा तो E1 फाइंड आउट कर सकते हो. So E1 by E2 is equal to L1 by L2 we consider, and that's the formula for your potentiometer we consider in this case to find the EMF. Now let us second thing to understand. The answer सुनना, ये क्या है? तुम्हारा सोर्स है, ये तुम्हारा ड्राइविंग सोर्स है, ये पूरा सर्किट को ऑन रखता है. E1 E2 एक्सटर्नल सोर्सेस है. अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं E1 is greater than E2, please pay attention ना, इसका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. अगर E1 is greater than E2 तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग लेंथ, आई एम यूजिंग द वर्ड बैलेंसिंग लेंथ किसका ग्रेटर होगा? तुरंत तुम्हारा आंसर आना चाहिए सर E1 greater than E2 है तो E is proportional to L. तो सर लेंथ L1 will be greater than length L2. अगर मेरा E1 is less than E2 है तो मेरा लेंथ L1 will be less than L2.
तो स्टूडेंट्स जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तो ध्यान देना कि डेटा के अंदर E1 कितना लिखा हुआ है, E2 कितना लिखा है, तो करस्पॉन्डिंगली तुम लेंथ निकाल सकते हो। अगर तुम्हें E1 3.2 वोल्ट दिया है और E2 5.4 दिया होगा तो E2 का करस्पॉन्डिंग L2 का वैल्यू ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू L1। यानी तुम जब भी सॉल्व करोगे मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मेरा आंसर L2 ज्यादा आना चाहिए एज कम्पेयर टू L1। अगर L1 से कम आया उसका मतलब तुमने गड़बड़ की। ये समझना है ना। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब ये सॉल्व करा मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा था, देखो E1 के लिए मैंने कौन सा लेंथ लिया था, AP1, देखो ये लेंथ, ये तो छोटा लेंथ है। E2 के लिए मैंने क्या किया, लेंथ बढ़ा दिया। उसका मतलब व्हाट डू आई अज्यूम, उसका मतलब मेरा E2 का EMF E1 से ज्यादा है। हो सकता है, क्यों नहीं, लेकिन व्हाट अबाउट माय ड्राइविंग सोर्स, my driving source will have an EMF always greater than E1 and E2। ये भी ध्यान में रखना, ये सोर्स हमेशा ज्यादा EMF होना चाहिए कंपेयर टू दिस टू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, the positive potential of the source, students, the positive potential of the source has to be connected always to the positive potential of the EMF, हमेशा ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ द ईएमएफ के साथ में ये कनेक्टेड होना जरूरी है। Is this much clear to all of you all, and is this part also clear? Okay. Can I erase now? Can I erase this? Okay, so the first formula for EMF we consider is your E1 by E2 is equal to L1 by L2 student. That's what we have got it, okay? Now we move further, so think carefully. So I'll put forward the formula once again, students. The potential gradient that is equal to V by small l till the time remains constant. Potential gradient is also given by the formula. Yes, Kishan, can you give me the answer? Kishan, answer दे सकता है potential gradient का formula, दूसरा और formula कौन सा है? और एक formula मैंने दिया था. Can anybody tell me the formula? कोई और है जो बता सकता है? Sir, potential gradient is equals to EMF of a cell upon resistance of AB plus resistance plus internal resistance plus resistance external of series into resistance of AB upon length of AB. Very good. ये तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसका भी यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका भी यूनिट क्या है, वोल्ट मीटर। ओके, दिस इज वोल्ट मीटर इनवर्स। नाउ द फर्स्ट कांसेप्ट वी wrote it was E1 by E2 is equal to L1 by L2। Is that clear? E1 फाइंड आउट करना तो E2 दिया होगा, E2 फाइंड आउट करना तो E1 दिया होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यही और एक एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। EMF को फाइंड आउट करने के लिए देयर इज वन मोर एक्सपेरिमेंट, दैट इज सेकंड वन। लेकिन ये कौन सा मालूम है, ये है सम एंड डिफरेंस मेथड। ये है सम एंड डिफरेंस मेथड भी कंसीडर। और ये जो सम एंड डिफरेंस मेथड है उसका फॉर्मूला स्टूडेंट ध्यान से सुनना, E1 plus E2 is the sum
upon E1 minus E2 is a difference that is equal to L1 by L2. ये तुम्हारा है फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसको हम ये भी कर सकते हैं, अगर सपोज मैं यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड यूज करूँ जो मैंने पहले बता दिया था, तो कंपोनेंट डिविडेंड यूज करूंगा तो क्या होगा, कंपोनेंट डिविडेंड स्टूडेंट्स को कैन यू गिव मी द फॉर्मूला फॉर कंपोनेंट डिविडेंड, व्हाट इज कंपोनेंट डिविडेंड स्टूडेंट्स, तो क्या बोलोगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या तुम बोल सकते हो एंटीसेडेंट प्लस कॉन्सिक्वेंट अपॉन एंटीसेडेंट माइनस कॉन्सिक्वेंट, एंटीसेडेंट माइनस कॉन्सिक्वेंट, यानी तुम अगर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे ना स्टूडेंट्स, तो तुम्हें यहाँ पे ट्वाइस ट्वाइस E1 मिलेगा और नीचे ट्वाइस E2 मिलेगा स्टूडेंट्स, और ये होगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अभी सम एंड डिफरेंस मेथड को लेने के लिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। स्टूडेंट्स हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं मालूम है, हम अभी भी पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन ही कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट ईएमएफ, ये फर्स्ट मेथड, दिस इज मेथड 1। ये कौन सा मेथड है, ये मेथड 2 है। यहाँ पे क्या था, एक सेल का ईएमएफ दिया हुआ दूसरे का पूछा है, यानी एक के बाद एक की को इंसर्ट करना है। यहाँ पे 2 सेल साथ में दे दिए, लेकिन उसको एक को किस में रखना है, एक को ये पोजीशन में रखना है। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स ये कौन सा पोजीशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है E1, ये है E2, व्हाट यू कॉल दिस पोजीशन एज, या व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन इज दिस कॉल्ड एज, और ये वाला कौन सा कंडीशन है बता सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, व्हिच इज दिस कंडीशन, तो तुम क्या नाम देखो, दिस इज कॉल्ड एज असिस्टिंग कंडीशन स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे असिस्टिंग कंडीशन। इसमें तुम्हारा रिजल्टेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 होगा स्टूडेंट्स, ये है तुम्हारा अपोजिंग कंडीशन, और इसका रिजल्टेंट ईएमएफ होगा E1 माइनस E2। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ विद इन मॉड्यूलस साइन, उसका मतलब जिसका ईएमएफ ग्रेटर होगा वो तुम्हें लेना है। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर सपोज ये 3 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो 3 माइनस 5 का मतलब -2, लेकिन मेरा आंसर मॉडुलस में, माय रिजल्टेंट इज 2 वोल्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट E2 के हिसाब से। क्या ये समझ में आया? अगर सपोज मैंने E1 को 5 वोल्ट दिया होता, ये मैंने दिया होता 2 वोल्ट, तो 5 माइनस 2 कितना होता, 3 वोल्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगा, ये मेरा ड्राइविंग सोर्स बनता है फिर। एंड स्टूडेंट्स ये दोनों चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान से मालूम हो, बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए थे स्टूडेंट्स, किसी को मालूम है करंट इलेक्ट्रिसिटी जब ये शुरू हुआ था करने के टाइम पे, आई गिव यू लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज, assisting condition, opposing condition, cells in series, cells in parallel, opposing parallel, opposing assisting in series. Students, anybody remembers those formulas? उसी के रिलेटेड हम लोग ने जब किरचॉफ लॉ किया था, ध्यान से सुनना, किरचॉफ लॉ किया तो वही फॉर्मूला मैंने यूज किया था। कभी कभी नेदीप ने पूछा था, सर कैन आई यूज दिस फॉर्मूला इन द एग्जाम्स, लेकिन अभी नेदीप आंसर नहीं दे रही है, यस और नो, यू आर डन इट विद अस। यही क्वेश्चन नेदीप ने पहले पूछा था, तो ये पूरा किरचॉफ लॉ से हम लोग ने आंसर निकाला था, फिर मैंने दूसरा मेथड यूज किया था जो मैंने फॉर्मूला दिया था तुम लोग को। तभी नेदीप ने पूछा, सर कैन आई यूज दिस फॉर्मूला इन द बोर्ड एग्जाम्स, उन्हें क्लियरली पूछा था उस टाइम पे, रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन आज मैं वापस पूछ रहा हूं, डन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलास, इज शी रिप्लाइंग नो, शी इज आल्सो सेलिंग इन द ब्लॉग विद द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज ऑलरेडी डन विद योर स्टूडेंट्स, ओके, असिस्टिंग एंड अपोजिंग कंडीशन। सो प्लीज हम लोग ये कंसेप्ट उठा रहे हैं, ओके, to get your answer accordingly. Now let us go for your again diagram of potentiometers. अब देखो वापस डायग्राम बना रहा हूँ पोटेंशियल, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा ईएमएफ P होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है मेरा P, ये मेरा रियोस्टेट कंट्रोल करंट को फ्लो करने के लिए, और मेरा पोटेंशियोमीटर वायर अगर मैं लेता हूँ तो ये मेरा पॉइंट A है। Now my potentiometer wire is a 4 meter long wire I'll consider, तो इसके लिए मैं ब्लू यूज कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, ये मेरा पॉइंट B हो जाएगा, इट्स मेड अप ऑफ कॉपर, ओके, ये तुम्हारा
पोटेंशियोमीटर आके एंड यहाँ पे मैंने ले लिया, ये चौकी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये तुम्हारे कॉपर स्ट्रिप्स है, कनेक्टिंग जंक्शन है ये सारे। और ये पूरा स्टूडेंट्स कहाँ पे सेटअप है, पूरा वुडन बोर्ड के ऊपर है, एक बड़ा सा वुडन बोर्ड होगा, उसके ऊपर वायर से अलाइन किया होता है, यानी इतना बड़ा डिवाइस है। दैट्स व्हाई टोल्ड इट्स नॉट पोर्टेबल। हाँ, दूसरी बात है इसमें कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, ये भी तुम्हारा आ गया। These are the junction you are considering. So A and B is my potentiometer watch. Okay, this is my driving source we consider. Now, what is the further circuit diagram? Further circuit diagram speaks about assisting and opposing conditions. So ऊपर एक separate circuit बना रहा हूँ. Listen carefully for that particular part of the circuit. यहाँ पे ये circuit के लिए मुझे 4-way key की जरूरत होगी. So I'm trying to go for a 4-way key. ध्यान से सुनना. Now this is what I'm going for EMF E1. If I'm not mistaken, students, ऐसे ही डायग्राम मैंने अपोजिंग और असिस्टिंग उस टाइम पे भी बताया था. Hope the diagram is clear. यहाँ पे मेरा की है, यहाँ पे मेरा की है, ये सारे की है, 4-way की दिया मैंने. अब इनको मैं नाम देता हूँ, 1, 2, 3, 4. ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम. अभी सबसे पहले तुम्हें ये देखना है करके कि हाउ एग्जैक्टली योर ड्राइविंग सोर्स है. स्टूडेंट्स, ये जो ई है वो तुम्हारा ड्राइविंग सोर्स है. यानी स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ईएमएफ ई जिसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सोर्स should be greater than E1 or as well as greater than E2. E should be and greater than E1, greater than E2. दूसरी बात, E should be also greater than assisting. Students, अगर ये बाई चांस कम हो जाएगा तो करंट इसमें नहीं जाएगा, यहाँ पे ड्राइव हो जाएगा and your device will get damaged. तो ये EMF should be greater than assisting. Assisting से greater होगा तो of course opposing से but of course greater ही होगा. ये दो चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए. अभी देखो E1 और E2 के बीच में क्या होगा, E1 अगर can be greater than E2 और E1 can be less than E2, कोई फर्क नहीं गिरता है क्योंकि ये मॉडुलस साइन में आएगा. ये मॉडल डिफरेंस हमेशा मॉडुलस साइन में आता है, कोई फर्क नहीं गिरता है, कोई फर्क नहीं गिरेगा. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले E1 can be greater than E2 or E1 can be less than E2. लेकिन my driving source should be greater than E1 and E2, so the driving source should be greater than what? Addition of both of them we consider. Friends, is it clear to all of you all? So what is the condition? My dear, condition for opposing के लिए it should be difference. Condition for opposing is considered to be difference, and difference is within the modulus sign. तो E1 greater than E2 हो या E2 greater than E1 हो, मेरा आंसर तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा. और वो मेरा डिफरेंस भी क्या होगा? लेस देन दिस ओनली ना. डिफरेंस तो हमेशा इससे कम ही होगा ना. स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 5 वोल्ट लूं और इसको मैं 2 वोल्ट लूं तो यहाँ पे टोटल 7 वोल्ट आएगा है. मेरा ये इससे 7 वोल्ट से ग्रेटर ही होगा. अगर सेम थिंग मैं यहाँ पे दिखाऊं 5 और ये 2 लूं तो मेरा 3 वोल्ट होगा, फिर भी 7 मेरा 3 से ज्यादा ही होगा ना. ये बोलना चाहता हूँ. दूसरी बात, भले ये 5 हो ये 2 हो, what are you saying it E is in relation to opposing? What are you trying to say? E in relation to opposing? I didn't get you. Where did I say E? My dear, opposing is E1 minus E2. Together is opposing, not only E. Karan, you try to unmute yourself. I'm not able to understand what are you posting. E1 minus E2 total opposing है. E1 plus E2 is total assisting है.
और तुम्हारा I'm ड्राइव talking about the main driving force, What? and I'm talking about the main driving force and the modulus of E1 minus E2. So that is always greater. Originally. Driving force is always greater than this. Yes, sir. If it is greater than E1 plus E2, it has to be greater than this only. अगर ये इससे greater है तो इससे भी तो greater ही होगा ना. करण पता चला? Yes, sir. और कुछ है, और कुछ कंफ्यूजन है, लग रहा है तेरे को कंफ्यूजन कुछ लग रहा है तो पूछ ना. No, sir. No, sir. यानी प्लीज दिस इज सिंपली हाउ टू, क्योंकि मुझे मेरा डिवाइस को आई वांट टू मेक माय डिवाइस टू फंक्शन. इफ आई वांट माय डिवाइस टू फंक्शन इफेक्टिवली, माय ड्राइविंग सोर्स शुड बी ऑफ अ गुड ईएमएफ. इट शुड बी ग्रेटर देन द असिस्टेंट. चलो मैं मैं अपोज, इसलिए मैंने अपोजिंग के बारे में लिखा ही नहीं, क्योंकि अगर जब E1 प्लस E2 से ज्यादा होगा तो बट ऑफ कोर्स इससे भी तो ज्यादा ही होगा ना. हाँ, इन दोनों के बीच में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं गिरता. और यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं गिरेगा. आंसर अगर मेरा -3 आता है या +3, लेकिन मॉडुलस के बाद में तो 3 आएगा, which is certainly less than this. Okay, students. Now let's move further ahead. Now, one thing you keep in mind over here. In the first case, students will go for assisting condition. यानी हम E1 plus E2 के ऊपर जाते हैं. Students, ये वाला. So what am I going to do? Answers will know. पहले तो मैं ये की को insert करूँगा. Agreed. Both this and this are at positive potential to consider. Agreed. If I want to go for assisting condition, तो मैं क्या करूँगा? Which keys I'll connect it, students? I'll try to close 1 and 3. ध्यान से देखना students. यानी अगर मैं की 1 and की 3 को क्लोज करता हूँ, कंडीशन क्या बन जाएगा? कंडीशन बनेगा असिस्टिंग. कैसे? ध्यान से देखो अभी. ये देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से देखना. ये देखो, ये वाई यहाँ पे आएगा, यहाँ की तरफ, फिर यहाँ की तरफ तो ओपन सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है. यानी अगर मैं देखो तो सर ये देखो पॉजिटिव, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज करेक्ट ना, पॉजिटिव नेगेटिव. अरे हाँ सर, सर्किट कंप्लीट हो रहा है. ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये टाइप का डायग्राम आएगा. क्या ये क्लियर हुआ? अगर मैं 1 और 3 को क्लोज करूंगा तो असिस्टिंग होगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. Now what I'll do, I'll insert the key. मैंने दोनों को insert किया. Now I'll take the jockey. Same concept, students, same concept. Jockey को मैं start sliding करते हुए, मैं अगर slide करते हुए गया at a particular point. Students, at a particular point मैं यहाँ पे देखता हूँ तो at point P1, if I have to consider the potential, the current in the galvanometer is brought to 0. अगर ये 0 आ जाता है, then in that case, I will say there is no current in this particular arm. Friends, इस आर्म के अंदर करंट है ही नहीं. उसका मतलब A और P के बीच में it's an open circuit. So what is the potential difference between A and P1? Whenever there is an open circuit, students, the potential difference between 2 points is simply called as EMF. So ये potential difference across EP1 is E1 plus E2. And that is directly proportional to what? Length AP1. Therefore, can I say E1 plus E2 upon length AP1 को length L1 में डालता हूँ, and that ratio remains constant. This is my equation number 1. क्या ये clear हुआ? Using the concept of potential gradient, all the time remains constant. Okay. Now the answer is no. The second case. Okay. Students, I'm continuing further because there are people who are texting and responding. Those students who don't want to respond, fine enough. Doesn't matter in that case. Okay, so I'm looking at the text of those students who are responding. Yes, sir. And then I'm moving further ahead. Now let's see carefully. अभी हम क्या करते हैं? हम opposing पे लेते हैं. Opposing में क्या करूँगा मैं? Can you tell me कौन सा keys को मैं close करूँगा मैं? Which keys I'll consider? Will I close 1 4 1 2 2 3 3 4 या 2 4?
कौन सा दूंगा मैं अपोजिंग के लिए? 2 and 4. 2 and 4. Use this. Shyly. Okay. Good. 2 and 4. अभी यहाँ पे क्या सुन, मैं 1 को ओपन रखता हूँ, 3 को ओपन रखता हूँ, now I'm closing 2 and 4. देखो 2 and 4 को मैंने क्लोज कर दिया. Now see how is my circuit? आप देखो, प्लीज देखो पॉजिटिव नेगेटिव. अभी देखो तुम्हारा, अगर तुम देखोगे तो ये ब्रांच में तो करंट हो ही नहीं सकता, करंट ये ब्रांच में जाएगा, यहाँ से होते हुए आई कैन कंसीडर दिस वन. अरे पॉजिटिव नेगेटिव, प्लीज अटेंशन, देखो भैया नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या होगा अपोजिंग. So now in the second case what exactly it is, when I take key 2 and 4 are closed, condition क्या होगा, condition will be opposing. तो यहाँ पे तुम्हारा रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होगा E1 minus E2. अगर सपोज मेरा E1 ग्रेटर एंड कंपेयर टू E2 तो E1 minus E2, लेकिन मॉडुलस साइन में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट. अभी ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ मेरा पोटेंशियोमीटर वायर, अभी ध्यान से सुनना, मैं 2 पॉइंट्स देता हूँ. मेरा पोटेंशियोमीटर वायर का जो जॉकी है वो क्या यहाँ पे टच होगा तो मुझे 0 देगा, यहाँ पे टच होगा तो मुझे 0 देगा. एट पॉइंट P2 और एट पॉइंट P3 बताओ. If I go for opposing condition, where should my jockey of the galvanometer should touch? Should be before P1 and should be after P1? That's my question to you all. Is क्या आंसर होगा? Yes. तो सिंपली डिफरेंस है ना सर, ईएमएफ कम हो रहा है और पोटेंशियल ग्रेडियंट की क्या होगा, ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. करंट ईएमएफ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्टूडेंट्स यही तो कंसेप्ट है. ईएमएफ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? E1 माइनस E2 में क्या हो रहा है, ईएमएफ कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना. तो ईएमएफ कम होगा तो करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या होना चाहिए, यही तो मैं बता चुका था आगे कि ये तुम जब भी समझोगे तो तुम प्रॉब्लम सही तरह से करोगे. तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली माय लेंथ शुड बी नॉट आफ्टर P1, इट शुड बी बिफोर P1 ऑलवेज. यानी अपोजिंग में तुम्हें बैलेंसिंग पॉइंट आगे की तरफ ही मिलेगा, ना कि यहाँ पे. कहाँ भी हो सकता है, एनीवेयर ओवर हियर on the potential, but it should be less than this always. Why? Because E1 minus E2 here, so that is proportional to what? Length AP2. This can I say E1 minus E2 upon L2, which is equal to a constant. This is my equation number 2. This is my equation number 1. Equating the two equations, can I get an answer? E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 plus L2. ये स्टेप के बाद में ये आएगा. फिर यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड यूज करो. So E1 by E2 is equal to L1 plus L2 upon L1. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Please try to understand very clearly. Potentiometer wire is used to measure potential difference between any 2 points along the length of the conductor. And students, ये जो point है, इसको हम बोलते हैं balancing point. AP1 is a balancing point, AP2 is a balancing point. ये जो balancing point क्या कराएगा? Zero deflection दिखाएगा. Zero deflection का मतलब no current in the galvanometer. उसका मतलब no current in this branch. No current, यानी वो open circuit. तो कभी भी open circuit होगा तो what is the potential difference between these 2 points? Will be the electromotive force across it. That's our potential difference between the 2 points is electromotive force across it. What is the electromotive force across it? Is it E1 plus E2 or E1 minus E2? सर आप AP2 के लिए बात कर रहे हो तो it will be E1 minus E2. Is it directly proportional to length? Yes, by the concept of principle of potentiometer. And what is the principle of potentiometer? Ratio of V by L all the time remains constant. And why does it remain constant? Why does it remain constant? Because the material of the wire is constant, resistivity is constant. Current to the entire potentiometer wire length is also constant. Area of cross section of the wire is also constant in that case.
So now we have got two mathematical formulas. First one is E1 by E2 is equal to L1 by L2. Second is sum and difference method. But E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 plus L1 by L2. लेकिन ये यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, EMF एक का दिया होगा, दूसरे का तुम्हें फाइंड आउट करना है. E1 दिया होगा तो E2 फाइंड आउट करोगे, E2 दिया है तो E1 फाइंड आउट करोगे. लेकिन मेथड विल बी दिस. Now students, can you understand? We can find out EMF more accurately. लेकिन see the calculations, see the settings, see the working. हाँ सर. तो बहुत टफ है. क्या वोल्ट मीटर जो तुम्हारा डिवाइस, तुमने वोल्ट मीटर देखा होगा एक्सपेरिमेंटल रूम में, एक छोटा सा वोल्ट मीटर होता है ट्रेपीजियम जैसा. क्या वो वोल्ट मीटर ईएमएफ मेजर करता है? नहीं करता. ईएमएफ कभी मेजर नहीं करता, ना ही वो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करता है. वो सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज मेजर करने के लिए. तो ईएमएफ अगर किसी ने पूछा कि मैंने तुम्हें एक बैटरी, चलो मैंने बैटरी दी है, सिर्फ 2-3 बैटरी दी है तुम्हें, एक तो ड्राइविंग सोर्स है, फिर मैंने ऐसे 2 बैटरीज दी तुम्हें, चलो इसका ईएमएफ निकालो. तो तुम्हें किसी भी हाल में ये डिवाइस के ऊपर ही जाना पड़ेगा. तभी जाके ये device is more accurate in that case, but it can give you EMF also. It can be used to find out internal resistance also. But the methods are quite tedious. बहुत ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे. Clear to all of us? क्या मैं erase कर दूँ अभी इसको? Wait sir. Okay. Now you need to go for finding out your internal resistance. Okay. To find internal resistance of a cell. Use of potentiometer is to find out internal resistance of cell states. And the formula for this will be small r is equal to capital R E upon B minus 1. ये एक वाला formula है. और you can use internal resistance is equal to capital R. E की जगह पे L1 आएगा, B की जगह पे L2 आएगा, minus 1. Now suppose अगर मैं ये दो formulas दे दूं, so I don't know how many fellow wise and smart enough in this particular group. मुझे बताओ E by V minus 1, L1 by L2 minus 1, ये क्या तुम्हें बताता है? What exactly this reveals? ब्रैकेट में E by V minus 1 और L1 by L2 minus 1 ब्रैकेट में जो लिखा है वो क्या तुम्हें बताता है? क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहता है वो? क्या बोलोगे? Absolutely correct, Shira. Absolutely correct, Karan. See, these are two students who are answering and they've given a direct message. हितांश ने मेरे भाई थोड़ा सा गलत हो गया. हितांश गलत हो गया तो
Chirag and Karan Jain has given correct answers. हितांश, E के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 होगा, B के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 होगा. That is what it means. यानी एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैंने तुम्हें बता दिया कि सर क्या करने वाले. ध्यान से सुनना. कोई भी स्टूडेंट स्मार्ट होगा ना, वो बोलेगा कि सर अभी क्या करेंगे मालूम है, सर एक एक्स्ट्रा ईएमएफ लेंगे लेकिन उसको ओपन सर्किट बता देंगे और ई के अक्रॉस L1 बता देंगे, फिर वो की को क्लोज करेंगे और फिर वो टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे और उसके अक्रॉस L2 बता देंगे और फिर फॉर्मूला में डाल देंगे. अब ध्यान से सुनना. लेट अस गो फॉर दिस. सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम लेते हैं स्टूडेंट्स. तो सर्किट डायग्राम फॉर अ पोटेंशियोमीटर फॉर टू फाइंड आउट इंटरनल. तो इसके लिए भी सेम सर्किट डायग्राम स्टूडेंट्स. ये तुम्हारा ईएमएफ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव. ये ईएमएफ है तुम्हारा. ये तुम्हारा की आ गया. ये तुम्हारा रियोस्टैट है कंट्रोल करंट को फ्लो करने के लिए. This is what point A. I think this is point B over here. I'm taking a 4 meter long potentiometer wire. This is 1, 2, 3, 4. It's a long wire. Agreed. Now I'll put copper plates यहाँ पे. ये सारे copper plates है, ये contact resistance वाले. यहाँ पे तुम जब भी करोगे ना एक्सपेरिमेंट्स, अगर कॉलेजेस शुरू होते हैं तो यहाँ पे स्क्रू वगैरह एकदम टाइट करके रखना. इसलिए बोलते हो एक दफे लेक्चर्स के बाद में अगर आज टाइम मिले तो इसके एक्सपेरिमेंट्स करना स्टूडेंट्स. तुम्हें और सारे बहुत पॉइंट्स करेंगे. उन लोग पूछेंगे सर्किट डायग्राम को चेक करने के लिए क्या करोगे कि तुम्हारा सही है गलत है, तो बोलेंगे जॉकी को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कनेक्ट करो. सुन रहे हो चिराग एंड करण एंड ऑल? हाँ सर. ओके. अगर तुम्हारा सर्किट डायग्राम को सही गलत है या सही है तो क्या करते हैं मालूम है, जॉकी को, वो तो अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल्स नहीं बता रहा हूँ मैं, आई एम गिविंग यू एन एक्सपेरिमेंट टू गिव द आंसर. लेकिन जो प्रैक्टिकल जब भी तुम करोगे या तुम सुनोगे या तुम वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे जॉकी को ए और बी को, जैसे मैंने विटस्टोन नेटवर्क के लिए क्या बताया था, विटस्टोन मीटर ब्रिज के लिए मेरा कनेक्शन सही है गलत, तो मैंने क्या बोला था, कनेक्ट द जॉकी एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, सॉरी मीटर ब्रिज लॉन्ग वायर. तो एक जीरो डिफ्लेक्शन एक तरफ आएगा फिर दूसरी तरफ जाएगा. एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है. ये सारे तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा सर्किट सही है गलत है. फिर तुम्हारे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को बहुत ही कम करना है तो सारे रेजिस्टेंस को तुमने एकदम प्रॉपर्ली टाइटन करना है स्क्रू को. ये तुम्हारा रियोस्टैट आ गया. दिस इज आवर, ये रियोस्टैट हो गया. नाउ तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स में क्या आएगा, एक्सटर्नल सोर्स के अंदर हमने एक ईएमएफ ले लिया स्टूडेंट्स. एग्री, दिस इज माय ईएमएफ. हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना स्टूडेंट्स. मैं ये E1 डांस सुना स्टूडेंट्स. अभी मैं क्या किया मालूम, मैंने ड्राइविंग सोर्स को E1 लिखा, इसको मैं E लिखता हूँ क्योंकि फॉर्मूला में E आ रहा है. इसको मैं E1 लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. माय E1 इज ग्रेटर देन E. और इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है, ये मुझे फाइंड आउट करना है. और फिर मैं क्या करूंगा, इसी के अक्रॉस मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा और की इसको ही कनेक्ट करूंगा. ये तुम्हारा की है, एक K1 हो जाएगा. या मैं K1 इसको लिखता हूँ तो K इसको लिखता हूँ. और फिर तुम्हारा जॉकी, ये तुम्हारा डायमीटर कनेक्ट होकर जॉकी. क्या ये सर्किट डायग्राम क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? So when you look into this, what exactly is actually speaking about, you know? ध्यान से सुना एवरीबॉडी. ये डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, लेकिन है कितना इजी. प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. ये सोचो कि मैंने ईएमएफ ये दिया है, इंटरनल ये दिया है, एक्सटर्नल मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये ओपन सर्किट है और ये मेरा पोटेंशियोमीटर रहा. स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर सपोज मैंने ये ओपन सर्किट रखा है एंड इफ आई हैपन टू कनेक्ट दिस पॉइंट अक्रॉस दिस पॉइंट, तो क्या मेजर करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ए बी? व्हाट इज दैट? ओनली ईएमएफ. लेकिन जब अगर सपोज मैं ई को इंसर्ट कर दूं तभी वो क्या मेजर करेगा? टर्मिनल वोल्टेज. यानी ये कौन सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कंसेप्ट. ये तुम लोग को बहुत पहले मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी जब शुरू किया था तभी उस टाइम पे ईएमएफ के टाइम में मैंने बताया था कि स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ सेल देता हूँ, ओके, एक कोई नॉमिनल सेल दे दिया है, उसके ऊपर 1.5 वोल्ट लिखा है,
तो ये क्या है, क्या ये ईएमएफ है, क्या ये टर्मिनल वोल्टेज है या ड्रॉप वोल्टेज है? तुम बोलोगे ना ही ड्रॉप वोल्टेज है ना ही टर्मिनल वोल्टेज, वो ईएमएफ है। कैसे पता चलेगा सर? अगर आप इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं डाल दूं तो शायद मुझे वोल्ट मीटर कुछ वैल्यू बताएगा। Of course, voltmeter resistance value will be showing less, but I can assume that the potential difference for an open circuit is 1.5. लेकिन सपोज अगर मैंने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और फिर मैं उसका वोल्टेज निकालूं तो वो क्या दिखाएगा मुझे? टर्मिनल वोल्टेज। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। Now to start off with, what exactly is the answer सुनना। सबसे पहले मैं की को ओपन रखूंगा, यानी ये की ओपन है, ये की क्लोज है, पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट टू पॉजिटिव। अभी क्या होगा? ट्राई टू टेक द जॉकी। जॉकी तुम यहाँ से स्लाइड करना शुरू कर दो, टैप करते शुरू जो है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा। सपोज मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो तुम्हारा पॉइंट पी क्या होगा? बैलेंसिंग पॉइंट। Will there be current in the galvanometer? You say no, so there is no current in the galvanometer. There is no current in the galvanometer, students. यानी point A and P, students, point A and P are what? Equipotential points. Now suppose if I say what is the potential difference between point A and P, तो तुम क्या बोलोगे? The potential difference between point A and P is simply your electromotive force of the circuit. क्या ये क्लियर हुआ? क्योंकि ओपन सर्किट है, करंट इसमें तो जा ही नहीं रहा है। जैसे कि मैंने ये वाला डायग्राम दिखाया था, करंट तो ड्रॉ कर नहीं रहा है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखना, ये पॉइंट इसको कनेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट इसको कनेक्ट हो रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पी? इज नथिंग बट बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, और वो ईएमएफ है। यही चीज हम करते आ रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट्स, पहले वाले में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। So now can I say your EMF of the cell, your EMF of the cell is directly proportional to length AP1. So can I say your EMF of the cell upon L1 is equal to a constant? क्या ये clear हुआ? Students, is it clear? Okay. Now what I'll do? अभी मैं एक की को इंसर्ट कर देता हूँ। उसका मतलब मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। जैसे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, अभी मैं इसको चौकी को लेके जा रहा हूँ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से हुआ क्या? सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से हमारा मैग्नेट ऑफ करंट, कुछ करंट ये रेजिस्टेंस लोड भी लेगा ना, कुछ करंट ये भी ले लेगा। तो व्हाट हैपेंस नाउ? विल माय पोटेंशियल डिफरेंस विल ड्रॉप? यस। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, अभी मुझे ये वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा? क्या मुझे 1.5 दिखाएगा? उससे कम दिखाएगा। तो तुम बोलोगे उससे कम दिखाएगा, वो क्या होगा? मेरा टर्मिनल वोल्टेज। तो तुरंत तुम बोलेगा अरे हाँ सर, जैसे तुमने की को इंसर्ट किया, अभी मैं चौकी को मूव करूंगा तो मेरा जो पॉइंट होगा वो इसके पीछे नहीं आएगा सर, इसके आगे ही रहेगा। क्यों? मेरा टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहा है, एंड स्टूडेंट्स टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। वी डिक्रीज होगा तो लेंथ भी तो डिक्रीज होगा। ये तुम्हारा AP1 है, ये तुम्हारा AP2 है। तो कैन आई से सेकंड केस में माय टर्मिनल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ AP2, so V by L2 is also equal to a constant. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is it clear? Now if I happen to go for my relation, तो क्या करूँगा मैं? यहाँ पे सुनना, E by will be equal to, can I put L1 by L2? Agreed? E by V is equal to L1 by L2. What is E? What is E? I into capital R plus small r. V को क्या लिखूंगा सर? ये टर्मिनल वोल्टेज है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए होगा I into कैपिटल R। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर, ये क्लियर हुआ। E को मैंने I into ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r लिखा, क्या ये क्लियर हुआ? तो कोई भी स्टूडेंट्स जिसको थोड़ा सा बेसिक्स मालूम, हाँ सर आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है?
कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया? जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ स्टूडेंट्स। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? I is equal to E upon capital R plus small r, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। E को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो I इनटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो E की जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। ये V क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, इसके लिए है, तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ R इनटू R, which is equal to what? L1 by L2, I gets cancelled। मुझे क्या चाहिए? किसका फॉर्मूला चाहिए? मुझे इंटरनल का फॉर्मूला चाहिए। तो क्या करूंगा सर? R को सब्जेक्ट बनाओ, स्मॉल r को सब्जेक्ट, ये कॉमन डिनोमिनेटर होगा तो कहने से 1 प्लस स्मॉल r by capital R is equal to L1 by L2। Therefore small r by capital R is equal to what? L1 by L2 minus 1। तो कहने से small r is equal to capital R into bracket L1 by L2 minus 1। क्या ये क्लियर हुआ? Is this formula clear to all of your students? Small r is your internal resistance is equal to capital R into bracket length of the first condition to the length of the second condition. This is for EMF and this is for terminal voltage. And EMF is greater than terminal voltage, therefore L1 will be greater than L2. क्या ये फॉर्मूला में E और V से भी लिख सकता हूँ? क्यों नहीं? क्योंकि सर आपने डिराइव कर दिया E by V equal to L1 by L2। करेंगे तो ये जो स्मॉल देखो ना, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 by L2। तो मैंने स्मॉल r by कैपिटल R को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो वो क्या होगा? L1 by L2 minus 1। What is my small r? Capital R into bracket L1 by L2 minus 1। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? अब Yes, देखो sir. L1 by L2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या कहना है? L1 by L2 को E by V। हाँ, L1 by L2 को क्या है ना? E by V। हाँ, तो देखो ना, मेरा E by V में लिख दिया है मैंने, ये देखो E by V minus 1। दैट इज वाई स्टूडेंट, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस का होगा ना तो दो फॉर्मूला ध्यान में रखना। एट टाइम्स प्रॉब्लम्स को ध्यान से रीड करना। क्या बैलेंसिंग लेंथ दिया है, बैलेंसिंग कंडीशन दिया, बैलेंसिंग लेंथ दिया गया, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दिया, लेकिन हम किसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं? ड्राइविंग सोर्स का नहीं है। ये तुम्हें एक्सटर्नल ईएमएफ दिया, उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स? So is it clear, all of y'all? Punishments. So we wind up over here check only. Okay, next lecture will be moving further ahead, students. Okay, we'll be going further with the problems, and we'll go further ahead with respect to your so-called voltmeter and ammeter का concept. Sir, हाँ बोलो, क्या हो गया? Sir, due to some network problem, I was not able to hear what you explained at the end. At the last part. सर जोर से बोलो ना, क्या बोल रहे हो? Sir, what you explained at the end, I was not able to hear that because of some network problem. So, sir, can you explain that once again? ये वाला हाँ, sir. अभी देखो, तो ये तो पता चला तुम्हें E by V equal to L1 by L2। Yes, sir. अभी देखो मैंने E को कैसे लिखा, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये पता है तुम्हें? Yes, sir. मैंने यहाँ Yes, से sir. हाँ, लिखा। sir. तो मैंने क्या किया, E के जगह पे I कैपिटल R प्लस स्मॉल r ले लिया, और देखो V को क्या लिखा मैंने, IR लिखा है। तो वापस मैं बताता हूँ, अगर मैं ये I को कैंसिल कर दूं तो मेरा भी फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R विच इज इक्वल टू L1 by L2। मुझे क्या चाहिए? मुझे फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस का चाहिए, तो मैं R को कॉमन निकालूं, तो ये कॉमन डिनोमिनेटर है, तो R अपॉन R क्या होगा? 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 by L2। तो देखो स्मॉल r बाय कैपिटल R क्या होगा? L1 by L1 L2 by L2 minus 1. R को उस तरफ ले लो, आगे तुम्हारा ये फॉर्मूला। Okay, sir. और वो L1 by L2 को क्या मैं E by V लिख सकता हूँ? क्यों नहीं? तो मेरा दूसरा फॉर्मूला Yes, ये sir.
लेकिन Okay, मैंने ये बोला कि ये जो हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? हम ड्राइविंग सोर्स का नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। जो हमें Yes, ईएमएफ sir. दिया जाता है उसके बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करें। ओके, हाँ sir. फाइन स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी कंटिन्यूड फर्दर। चलो बाय।